सत्य पथ पर बढ़ते चलो। शिक्षा संस्कृति संस्कार यही हमारा है आधार। जय गुरुकुल भारत का अभिमान। जय गुरुकुल ऊंचा रहे सम्मान। अनुशासन की शक्ति लेकर सेवा का संकल्प लेकर ज्ञान ज्योति मन में जलाकर चलो विजय के पथ पर। जय गुरुकुल भारत का अभिमान। जय गुरुकुल ऊंचा रहे स्वयं जगे और सबको जगाए। स्वस्थ रहे और सबको बनाए। सच्चे सुख की प्यास जगा कर अपना जीवन सफल बनाए। अपना जीवन सफल बनाए। जय गुरुकुल भारत का अभिमान। वंदे मातरम जय जय हिंदुस्तान। गुरुकुल सावधान, आगे से तेज चलेंगे, तेज चल। And now the movement we all have been waiting for, presenting the main body of student council of our school. I request Principal Ma'am. Will all my duty faithfully, Jai Hind. I, Avar Dunge, Assistant Head of Gurukul, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. I, Raghav Pathak, Principal Representative of the Gurukul, and take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind.
is Master Harikada, known for his obedience, sincerity, and dependence. Moving towards the responsibility of sports captain is entrusted to Master Pratap, calm under pressure and sincere in his efforts. We believe that true sportsmanship is built on teamwork, discipline, and respect. Receiving the badge as discipline captain is Master Hemant Chauhan. With his energetic spirit, creativity, and enthusiasm, Hemant sets an example by encouraging discipline in a positive and cheerful way. You may honor them with your presence. The badge of cultural captain is presented to Master Samad Singh, intelligent, responsible, and a talented basketball player. Samad's confidence and versatility make him a role model both on and off the stage. Honor this remains with your thunderstorm clap, please. Receiving the badge as senior representative is Master Hardik Vasunia, a bright student and a true sportsman. Hardik is admired for his dedication, positive attitude, and willingness to support others. Master Hardik. The badge of junior representative is awarded to Master Tejas Samira, active, intelligent, enthusiasm, and commitment. Give them a big round of applause. I, Harikadam, Vice Captain of Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind! I, Pratham Patel, Sports Captain of the Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind! I, Hemant Chauhan, Discipline Captain of Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind! I, Samad Singh, Culture Captain of Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind! I, Hardik Vasunia, Senior Representative of Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind! I, Tejas Samira, Senior Representative of Pani Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Vyas, Vedvyas compiled the Vedas and authored the Mahabharata, the world's longest epic. He preserved India's spiritual wisdom for generations through his extraordinary literary works. And it's named after Maharshi Vyas, the great sage. Now, I request Ma'am and Sir to please adorn our council with badges and confidence. Master Pratap. Give a big round of applause, receiving the inspiring letter through his vibrant personality, Master Prateek. Give a big round of applause, everyone. The badge of sports captain is presented to Master Hemant Patel, a disciplined sportsman known for his obedience and polite nature and effort. Master of courage. Please give a big round of applause. Receiving the badge as discipline captain is Master Bharat Rathod, active, responsible, and sensible. He leads with commitment and sets a positive example through his actions.
Patel, sports captain of Rajasthan, take this oath that I will fulfill my duties faithfully. Jai Hind. I, Bharat Rathod, discipline captain of Rajasthan, take this oath that I fulfill my duties faithfully. Jai Hind. I, Vivek Vansi, the cultural captain of Rajasthan, take this oath that I will fulfill my duties faithfully. Jai Hind. I, Mr. Japati, senior representative of Rajasthan, take this oath that I fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. I, Kumar Thakur, senior representative of Rajasthan, take the oath I will fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. सामने से एक साथ तेज चलेंगे, तेज चल. Patanjali Siddhartha, named after Maharshi Patanjali, who gave the world the Yoga Sutras, the timeless guidance to mastering the mind. His 8 limbs of yoga continue to aspire billions towards health, discipline, and inner peace. And now I request Madam Sir to please adorn our council with badges and session. Receiving the badge as Vice Captain is Master Krishna Verma, active, intelligent, and always eager to learn. I, Krishna Verma, Vice Captain of Patanjali Sadar, take this oath that I fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. I, Jai Jawanjal, Sports Captain of Patanjali Sadar, take this oath that I will fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. I, Krishna Verma, Discipline Captain of Patanjali Sadar, take this oath that I will fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. I, Om Jormale, Consultant Captain of Patanjali Sadar, take this oath that I will fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. I, Asma Sarma, the senior president of Patanjali Sadar, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. I, Mohin Bhuria, senior representative of Patanjali Sadar, take this oath I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind.
captain of Vashi Sadan, take this oath that I will fulfill my all duties faithfully. Jai Hind. I, Mohan Goel, the cultural captain of Vashi Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. I, Srila, senior executive of Vashi Sadan, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. I, Leela Executive President of President, take this oath that I will fulfill all my duties faithfully. Jai Hind. The council members of Gurukul take this oath that we will fulfill all our duties with honesty and sincerity. We will respect our teachers, support our fellow students, and uphold school discipline in every situation. We will lead by examples, speak with kindness, act with courage, and stand for what is right. We shall carry the values of our Gurukul, Shiksha, Sanskriti and Sanskar in all that we do. Together we promise to serve with pride, to lead with heart, and to shine as true representative of the Gurukul. Jai Hind.
Give a big round of applause for all of them, everyone. Class UKG, Parth Rochmani. Class first, Sanskar Patel. Class second, Nikunj Sharma. Class third, Vedant Singh. Class four, Dakshma Santani. Class fifth, Class 7A, Ruth Rasani. Class 7B, Ravish Kaharia. Give a big round of applause. Class 8A, Pawan Gohil. Class 8B, Shubh Mishra. Class 9A, Om Agarwal. Class 9B, Omkar Singh. Class 10, Avi Pawar. Class 11, Commerce, Arpan Agarwal. Class 11, Science, Rava Parad. Class 12, Commerce, Raj Noel. Everyone, for all the achievers. ये गुरुकुल का 19वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। और हर बार मुझे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा आनंद आता है, और वो यह है कि कुल 31 गुरुकुल हैं हमारे पूरे भारत भर में, लेकिन संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर एकमात्र ऐसा गुरुकुल है जहाँ पर पूज्य श्री स्वयं पधारे और यहाँ का शुभारंभ, इनॉग्रेशन गुरुदेव के श्री चरणों से, गुरुदेव के कर कमलों से हुआ है। तो ये एक ऐसा भाग्यशाली गुरुकुल है। और इतना ही नहीं, जब पिछले वर्ष जब पूज्य बापूजी का इंदौर आगमन हुआ था, तो पहले तो वो वाला जो पार्ट होना था वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन जब पिछले बार आना हुआ तब इस वाले पार्ट में भी गुरुदेव के श्री चरण पड़े। तो हम लोग सच में भाग्यशाली हैं। और दूसरी बात ये है कि आप में से बहुत सारे नए पेरेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी कि गुरुकुल जो है वो अपनी 3S फिलॉसफी पर काम करता है। 3S मतलब कि एक S है शिक्षा, दूसरा है संस्कार और तीसरा है संस्कृति। तो ये जो शिक्षा, संस्कृति और संस्कार है, ये तीनों का बैलेंस, ये तीनों का एक परफेक्ट ब्लेंड ही है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर। एजुकेशन तो हर जगह मिल जाएगा, बुकिश एजुकेशन, लेकिन आज आप सभी को समझ में आता होगा, आप सभी का ये अनुभव होगा कि अकेले पुस्तकों के ज्ञान से जीवन पूर्ण नहीं होने वाला है। जीवन की जो पूर्णता है वो बिना अपने संस्कृति और संस्कारों के नहीं होने वाली है। तो जो एजुकेशन, और इसके साथ साथ अकेले संस्कृति और संस्कार से भी जीवन यापन नहीं होना है। उसके लिए आवश्यकता है कि जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है वो भी बच्चों के साथ में हो, लेकिन अकेले मॉडर्न एजुकेशन के से काम नहीं होगा। उसके साथ में हमारी दिव्य भारतीय संस्कृति का ज्ञान, जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, पूरी दुनिया के लोग जिसके आगे नतमस्तक होते हैं, घुटने टेकते हैं, ऐसी दिव्य सनातन संस्कृति के हम फॉलोअर हैं। तो उसका ज्ञान, उसका एक प्राउड फील वो हमारे बच्चों में होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो संस्कार हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों ही
बिल्कुल बराबर तरीके से आवश्यक है बच्चे की, जिसको हम बोलते हैं हॉलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। और आप सभी को पुनः एक बार बधाई, आप सबका हार्दिक अभिनंदन गुरुकुल के 19वें फाउंडेशन डे समारोह में। इसमें आप लोगों के सामने मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है ये साझा करते हुए कि जो ये गुरुकुल फाउंडेशन डे है, हमारा 19वां गुरुकुल फाउंडेशन डे, इसमें हम लोग एक ERP का लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोगों को, जो भी अवेयर पेरेंट्स हैं, आप सभी को पता होगा कि आपके बच्चे का ID और पासवर्ड आपको शेयर किया गया है, और इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ही उसको ERP को आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जो काम अभी तक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर रहे थे, चाहे वो बच्चों के मार्क्स शेयर करना या किसी प्रकार का नोटिस शेयर करना, मैसेज शेयर करना, या आपको कोई इनविटेशन देना है या छुट्टी का मैसेज है, जो कुछ भी काम हम लोग अभी तक व्हाट्सएप से के माध्यम से कर रहे थे, वो अब हम व्हाट्सएप से ना करके अब हम अपने गुरुकुल के ऐप से करेंगे। तो जैसे आप लोगों के मोबाइल्स में डिफरेंट ऐप होते हैं, गेम्स के ऐप होते हैं या व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया के ऐप होते हैं, इसी प्रकार से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकेंगे गुरुकुल का ERP ऐप, और एक क्लिक में आपको सब कुछ, बच्चे का जो कुछ भी बेसिक डिटेल है, जानकारी है, वो आपके सामने होगा। इतना ही नहीं, बल्कि जब भी उसमें कुछ नया अपडेट होगा वो भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि गुरुकुल के ऐप में कुछ नया मैसेज आया है और मुझे खोल करके देखना चाहिए है। तो ये आपके मोबाइल की सेटिंग से आप लोग कर सकते हैं। और भाई इस ऐप की जानकारी के लिए मैं श्रद्धा मैम को इनवाइट करूंगी। श्रद्धा मैडम ही इस पूरे ऐप की कोऑर्डिनेटर रहेंगी। आपको ऐप को संचालित करने में, ऐप से काम लेने में जहां कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, आप श्रद्धा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर 12 से 4 के बीच में आप कॉल करके भी, या प्रिफर कीजिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैम को संपर्क कर सकते हो, और जहां कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई या अवरोध आए आप इनसे समझ सकते हैं। तो मैं मैम को यहाँ पर इन्वाइट कर रही हूँ इस ऐप के सभी डोमेन्स को आपको समझाने के लिए। श्रद्धा मैम। यहाँ पे हम लोगों का जो ऐप है वो आप लोगों को प्ले स्टोर में इंदौर गुरुकुल के नाम से मिलेगा, और अभी हम लोग इसका APK आप लोगों को शेयर कर देंगे। टीवी पे हम लोगों ने स्क्रीन कास्टिंग की है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। ऐप ने शेयर कर दिया है। एक्चुअली उन्होंने आप लोगों को यूज़र नेम शेयर किया है, जो यूज़र नेम है वही आपका पासवर्ड रहेगा। सभी एक बार अपना मोबाइल चेक कर लें। पर्सनल नेम क्लास टीचर्स ने दिया था। अगर अभी क्लास टीचर्स एक बार जो फाइल है वो आप लोग बच्चों के क्लास ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि पेरेंट्स को दिख जाए। मैं एक बार इसको लॉग आउट करके आप लोगों को फिर से बताती हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जैसे ही आप लोग ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम में आप लोगों को जो भी यूज़र नेम आपको दिया हुआ है वो कॉपी करके पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम को पेस्ट कर दिया है। सिमिलरली पासवर्ड में भी मेरा यही यूज़र नेम ही मेरा पासवर्ड है, तो मैं उसे यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। क्लास 11-12 के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स के पास चले जाएंगे। अगर उनको कोई भी दिक्कत आएगी ऐप को इंस्टॉल करने में तो वो करवा देंगे। ये पूरा ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जहाँ पे डमी डे स्कॉलर लिखा है वहाँ पे आपको आपके बच्चे का नाम शो होगा, और उसके नीचे टुडेज लर्निंग है। टुडेज लर्निंग का मतलब है कि बच्चे ने आज किस चीज़ की पढ़ाई की है। जैसे आप टुडेज लर्निंग को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हैं बच्चे के सब्जेक्ट्स दिखने लग गए हैं, और 2 टैब है ऊपर, क्लास वर्क का और होमवर्क का। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को शो होंगी। आपने अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लिक किया, जैसे मेरे सामने अभी इंग्लिश अवेलेबल है, मैंने उसे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास वर्क और होमवर्क। अभी क्लास वर्क असाइन नहीं है इसलिए वहाँ पे आ रहा है नो क्लास वर्क, लेकिन मैं होमवर्क पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमवर्क डला हुआ है। तो इस तरीके से आप डेली बच्चे का होमवर्क और क्लास वर्क चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिस, सेकेंड सेक्शन है नोटिस का।
नोटिस में जो भी लेटेस्ट नोटिस होगा वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे अभी ओथ सेरेमनी का नोटिस डला हुआ है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके नीचे वाले टैब में एग्ज़ाम मार्क्स का ऑप्शन है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि हम लोग बच्चों के चैप्टर एंड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके जो भी मार्क्स होंगे वो एग्ज़ाम मार्क्स में आप लोगों को शो होंगे। अचीवमेंट्स का जो ऑप्शन है उसमें बच्चे ने अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और बच्चे का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, बच्चे की क्या क्या अचीवमेंट है, वो आपको अचीवमेंट वाले टैब में देखने को मिलेगी। उसके बगल में जो टैब है वो है फीस का। फीस में आप लोगों को बच्चे की जो फीस है वो दिखाई देगी, कितने ड्यूज़ हैं, कितना आपने पे कर दिया है, ये आप लोगों को समय समय पर दिखता रहेगा। उसके साइड में कंप्लेन का ऑप्शन है। कंप्लेन के ऑप्शन में बच्चे की किसी भी तरीके की अगर कोई कंप्लेन है, उसकी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी या होमवर्क को लेकर के, तो ये सारा क्लास टीचर अपडेट करेंगे, वो आपको यहाँ पे शो होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में बच्चे के एकेडमिक से रिलेटेड लाइक उसका स्टडी मटेरियल हो या क्लास वर्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। इसके बाद सिलेबस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मंथली सिलेबस ब्रेकअप डला हुआ है। जब आप लोग व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा आपको कि पर्टिकुलर मंथ में बच्चे के कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होने, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और कब चैप्टर एंड टेस्ट होगा। इसके बाद टाइम टेबल का ऑप्शन है। इसके बाद टाइम टेबल का ऑप्शन है। टाइम टेबल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है क्लास टाइम टेबल और दूसरा है एग्ज़ाम टाइम टेबल। क्लास टाइम टेबल में बच्चे का जो रेगुलर शेड्यूल रहता है, मंडे को उनके कौन कौन से पीरियड रहते हैं, क्या उनका टाइम रहता है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होंगी। और जब आप लोग एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम टेबल जो भी होगा, चैप्टर एंड टेस्ट का हो या हाफ ईयरली का हो या एनुअल एग्ज़ाम का हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। नेक्स्ट इवेंट, स्कूल के जो भी इवेंट हैं, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। असेंबली की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे ने अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो वो यहाँ पे समय समय पर अपडेट होगा। अटेंडेंस वाली टैब में आपको बच्चे का अटेंडेंस दिखाई देगा कि बच्चा किस पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रेजेंट रहा है। इसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको स्कूल का पूरा प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉल बटन है। जैसे आप लोग कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल का नंबर, स्कूल के ऑफिस का नंबर डायरेक्टली दिख जाएगा। इस पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ टीचर्स का नंबर। जब आप इसी टैब को स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स के नंबर भी यहाँ पे शो होंगे। क्लास टीचर अलग से मेंशन हो रहे हैं और उनके बगल में आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप और कॉलिंग का ऑप्शन है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको आपके व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा और व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप टीचर्स को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन जो रहेगा वो बच्चों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सपोज आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इन सारी चीज़ों के लिए है। ये हमारे डे स्कॉलर बच्चों का था। हॉस्टलर बच्चों के लिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगी। वैलेट का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें बच्चे के चाइल्ड फंड का पूरा रिकॉर्ड है कि बच्चे ने किस मंथ में कौन से डे पे कितना अमाउंट खर्च किया है और बच्चे के अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट बचा हुआ है। ये जो फीचर है वो हॉस्टल बच्चों के अकाउंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों का जो सीनियर जूनियर का ग्रुप है वहाँ पे हम ऐप का APK शेयर करें या फिर क्लास टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो ओनली एकेडमिक्स में जो APK फाइल आई हुई है वो क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्लास ग्रुप में शेयर करने के बाद आप लोग देखिए अगर आप लोगों को मैसेज आ गया है। We now present a special Gurukul song written by respected Shravan sir and beautifully composed by Abhishek sir and Rajesh sir.
तुम्हें तांग के सीना। इन मधुर पंक्तियों को हमारे पूज्य बापू जी अक्सर बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं। उसी भाव और उल्लास को अपने नन्हे मुन्ने कदमों से साकार करने आ रहे हैं हमारे प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी। प्यारे बच्चे, अमन के बच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, मुश्किल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।
लालवानी, दीप प्रजापति, हितेश सूरजवानी, सक्षम वैश्य, उज्जवल चौधरी, आशुतोष साहू, आलोक वर्मा, स्वयं से स्वप्रेरणा से किसी भी कार्यक्रम में अपनी सेवा देते हैं और सिर्फ कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि डेली रूटीन में भी जहाँ ये बच्चे हैं वहाँ पर हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कार्यक्रम अब कैसे होगा, हमारा आगे का शेड्यूल कैसा रहेगा। ये बच्चे ऐसे हैं जो सामने से आकर के सेवा में अपना हाथ बटाते हैं और सेवा भाव है इन बच्चों का। तो ऐसे ये बच्चे चुने गए हैं, आप लोगों के सामने हैं। इन सभी का उत्साहवर्धन की बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के जो भी नाम लिए गए हैं, इन लोगों को भी नहीं पता था कि इनके नाम चुने गए हैं वॉलंटियर्स अवार्ड के लिए। तो इन सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार। और मैं निवेदन, इसमें हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पास आउट हो गए हैं, मैं उन लोगों को आगे की ओर आमंत्रित करूंगी। इस साल पास आउट बच्चे हैं और आपके टीचर्स, चाहे वो म्यूज़िक टीचर्स हों, स्पोर्ट्स टीचर हों, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, शर्मा सर, हॉस्टल वार्डन, विपिन सर, इन सभी से आप लोगों के नाम मांगे जाते हैं और उनकी तरफ से आपके नाम के सजेशन आते हैं। तो मैं इनको सम्मानित करने के लिए ललित सर, हमारे चीफ गेस्ट और पंकज भैया, इनको आमंत्रित करती हूँ कि इनको वॉलंटियर्स अवार्ड से सम्मानित करें। One more name is there, Raghav Pathak. We now invite everyone to immerse themselves in the divine satsang of our Pujya Bapu. ऐसा गुरु को देखना जो ध्यान चिंतन करता है वो गुरु नहीं है।
विश्व में आज तक हमारा अगर परम हितेश की हमें जीवन में कोई मिला, करोड़ों जन्मों में अगर कोई परम हितेश की जन की खोजना हो तो सदगुरु हो सकता है, सबसे बड़ा कोई हितेश। कब तक सुख करते रहोगे, कब तक दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे, कब तक अहंकार की गुलामी करेंगे। अब आत्म खजाने की जाग रहे हैं, स्व अभिमान स्व के केंद्र में हम खुद बना रहे हैं। केंद्र के रूप में वरुण के रूप में आप शिव जी की पूजा करते तो आत्म साक्षात्कार समझते, मेरी दुनिया होती। विष्णु की पूजा करते, देवी की पूजा करते, यानी को ऐसा नहीं है कि मेरी पूजा करो, सभी लोग मेरी पूजा। अब पूजवा ने कहा उसको होता नहीं, बिना पूजे अपने आप में तृप्त रहता है, पूजा करो न सतृप्त मैं तृप्त रहता है, सब अमृत सब तक जीवन तर जाता है। योगान लाने के लिए जन्मों से जोड़ता है, जो कभी नहीं मर सकता है वो मरता है, जहाँ कहीं दुख प्रवेश नहीं हो सकता वो कहीं, जहाँ चिंता का प्रभाव नहीं कर सकता वो चिंता का प्रभाव नहीं है, दुख का प्रभाव, चिंता का प्रभाव, मुसीबतों का प्रभाव, नहीं का प्रभाव शरीर पर, मन पर। इन सबको जो जानना है वो मैं, दुख का सबको क्यों करो, असत्य छोड़ो, सुख का सबको क्यों करो, मौतों के काम है तो अपनी ज्ञान सहित मौतों के काम आ जाए आपका सुख, आपका सामर्थ्य, आप एक शिष्य जुड़ गए गीतों का, शास्त्रों का नीचे और नीचे बता दो। बड़े में दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी प्रेरणा वाले की आवाज नहीं है। मैं शांत, मैं अचेतन, मुझे वासना क्यों न चाहे, मुझे भय क्यों डरा, मैं चिंताओं की कल्पनाओं को कुचल सकता हूँ, मैं भय के भयावस्थानों को कुचल सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा समाधि संत की हृदय आनंद अकर्मता को पूजा, गिरे इंद्र को रंग, इंद्र का सुख निरंतर जैसा होता है, ऐसा सुख सकलों की पूंजी से मिलता है। संतों की महिमा से सुख और चैन मिलता है, वो दुनिया की सब चीजें इकट्ठी करना नहीं सकता। अगर है शौक मिलने का तो किस्मत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के कफन में। Respected Director Pankaj ji, Principal Madam, faculty members, parents, students, नमस्कार। आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी यहाँ पर। मैं देख रहा था, जो 4 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी मैं साझा करने की कोशिश करूंगा। पहली, हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति कुछ बहुत अच्छा कर लेता है तो हम उसको गिनाते रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी कोई बहुत बड़े पद पे पहुंच गए, वो कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो हम उनको हम हमारे रिश्तेदार में उनको गिनाते रहते हैं कि वो जो हैं वो हमारे फलाने जो है वो कलेक्टर हैं, या हमारे यहाँ से किसी ने कोई अचीवमेंट ले लिया है तो उसको गिनाया जाता है हमेशा, है ना। तो मैं काफी सारे स्कूल्स में जाता हूँ, दिल्ली कॉलेज में जाता हूँ, ऐसा कोई स्कूल शायद ही मुझसे छूटा होगा जहां पर मैं नहीं गया हूँ। पर ये जो 4 हाउसेस के नाम थे ना, ये वही गिनाना है। पाणिनि कौन है? 500 साल पहले हमारा एक पूर्वज था जिसने वो स्थापित कर दिया जिसको पूरा विश्व आज फॉलो कर रहा है। तो उसके कारण आप ये समझो कि आपको वो गौरव का भान जो है वो पैदा करने के लिए वो नाम ही काफी है। तो पहला स्टेप जो होता है वो ये है कि हम हमारे बच्चों को स्व से जोड़ें। हम हमारे बच्चों को ये बताएं कि सब चीजें वेस्ट में देखकर नहीं करना है। अंग्रेजी एक भाषा है, माध्यम है। अंग्रेजी का मतलब सब कुछ नहीं होता। अंग्रेजी का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इस पे 4000 से ऊपर शोध पत्र हैं। किसी को अंग्रेजी नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है।
तो हमको हमारे बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना पड़ेगा कि ये जो देश जिसमें हम हैं, इस देश के अंदर स्व बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में 2600 साल पुराने एक सर्जन की मूर्ति यूके में, लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में लगाई जाती है। सुश्रुत की मूर्ति क्यों लगाई गई है? क्या कर दिया होगा 2500 साल पहले सुश्रुत ने ऐसा? तो आपको बहुत छोटी सी चीज बताता हूं। 600 साल पहले भी अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, मेनलैंड यूरोप की तरफ देखें, तो वहां नालियां बहती थी, वहां लोगों को रहना भी नहीं आता था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, मैं परसों एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें बड़ी आश्चर्यजनक चीज मिली रिसर्च पेपर में मुझे, कि आप देखिए अंग्रेज आकर हमको ये समझा के गए कि साफ सुथरा रहना चाहिए, ऐसा नैरेटिव था, जबकि ऐसा नहीं था। हम उस समय भी नहाते धोते थे, हम उस समय भी दिनचर्या करते थे, हम उस समय भी सुबह उठ के नहाकर पूजा ध्यान सब कुछ करते थे, जबकि आज तक अंग्रेजों को शौच के बाद, शौच से निपटने का जो साधन है वो कागज है उनका, और हमारा है पूरा, कि भाई हम पूरा उसको नित्य कर्म करके ही पूरा शुद्ध होते हैं। तो आप बताइए कि हाइजीन किसके पास ज्यादा है, हमारे पास कि उधर? तो हम लोगों ने ये स्व से जो दूरी बना ली है, ये मुझे इस स्कूल में अच्छा लगा कि चारों हाउसेस को अगर मैं देखूं तो चारों हाउसेस का जो नाम है वो स्व से रिलेटेड है। वहां पे स्व की स्थापना होती है। आपके बच्चों को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में किसी ने ये बेंचमार्क लिया था, तो वो उससे ऊपर कैसे निकलेंगे? तो आप कोशिश कीजिए अपनी कहानियां, अपने दादा नाना की कहानियों के साथ इस देश की कहानियां भी बच्चों को समझाइए, क्योंकि इसी से हमारा भला होगा। दूसरा, ओथ क्या होती है? बच्चों, आज आपने ओथ ली, ओथ का मतलब क्या होता है? आप हमेशा देखते होगे कि भाई बहुत सारी जगह ओथ होती है कि हम ये करेंगे, हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तंबाकू नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये ओथ लेते हैं लोग, राइट? सबने देखी होगी ओथ लेते हुए। पुरानी पिक्चरों में तो वो गीता के ऊपर हाथ रख के ओथ लो कि आप झूठ नहीं बोलोगे, ये भी बहुत नाटक चलता था। पर आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। ओथ का मतलब होता है खुद से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप ओथ किसी और के लिए नहीं लेते हो। ओथ सबसे पवित्र चीज है, क्योंकि आप वो खुद के लिए खुद से लेते हो। आप अगर अपने आप से झूठ बोलने वाले हो तो वो ओथ के अंदर, अगर आप ओथ का पालन नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ माना गया है सारे धर्म शास्त्रों में, वो खुद से बोला गया झूठ है। तो ओथ का पालन ना करना अपने आप से झूठ बोलना है। तो ओथ की गरिमा को समझो कि ओथ का मतलब होता है खुद से झूठ ना बोलने की कसम खाना, ये ओथ का मतलब है। और तीसरा, अभी तकरीबन मुझे अभी आईआईटी इंदौर ने मुझसे बोला कि ललित सर आप बताइए कि एआई के इस जमाने में कैसे सर्वाइवल आएगा, एआई के इस जमाने में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब तो सब कुछ मशीनों से होने लगेगा, झाड़ू पोछा भी मशीनों से हो जाता है सर आजकल। तो एआई के इस जमाने में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है। दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही साधन था, है और रहेगा, वो है आपके टैलेंट को आप कैसे नर्चर करते हो। आप अपने टैलेंट को कैसे नर्चर करते हो, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप कैसे नर्चर करते हो, इससे डिसाइड होता है कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। तो बहुत सिंपल है। अगर अर्जुन का टैलेंट तीर चलाना था तो उसको उसी में डेवलप होना पड़ा। अगर भीम का टैलेंट बल था तो वो बल में ही डेवलप हुआ। आपको अपने बच्चे को उसका टैलेंट आइडेंटिफाई करके देना है, बाकी काम तो भगवान ने उसको ऑलरेडी करके भेज रखा है। हम बेसिकली बच्चों के अंदर वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनमें नहीं है। भीम को अर्जुन का काम दोगे तो नहीं कर पाएगा, अर्जुन को भीम का काम दोगे तो नहीं कर पाएगा। लता मंगेशकर फुटबॉल नहीं खेल सकती थी और सचिन तेंदुलकर जो है वो तबला नहीं बजा सकता। ये बात हजारों लोग आपको बोल के निकल गए, पर किसी ने भी ये नहीं बताया कि टैलेंट पता कैसे चलता है। सबसे मूल प्रश्न है कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, आप बहुत सिंपल सी चीज है, आज ही समझ में आया। 5 बच्चे खड़े थे, उन 5 बच्चों को किसी को कल्चर दिया है, किसी को डिसिप्लिन दिया है, किसी को लीडरशिप दी है। ऐसा कैसे हुआ? तो एक बच्चे का नैसर्गिक स्वभाव है कि वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो डिसिप्लिन क्या है? उसका टैलेंट है। अब आप डिसिप्लिन से रिलेटेड किसी भी चीज में उसको डेवलप करोगे, वो टॉप पे चला जाएगा। कोई बहुत मस्तीखोर बच्चा है तो उसको काय में डेवलप करना है, जहां ज्यादा ऊर्जा लगती है ऐसे किसी काम का। कोई बहुत शाय बच्चा है, बहुत चुप रहता है, ऐसे बच्चे को कहां डेवलप करना है? इंटेलिजेंस में।
ये बच्चा आईटी और सीबीआई के लिए सबसे उपयुक्त बच्चा रहता है, क्योंकि एक ही जगह बैठ के एक ही विषय पर सालों तक रिसर्च कर सकता है, ईडी के छापे मार सकता है, सीबीआई के साथ काम कर सकता है। तो ये जो बच्चा है, ये भी हर बच्चे को भगवान ने कुछ ना कुछ देके भेजा है। आप इस चीज को, आपके क्लास में कौन है जो डिसक्सेसफुल रह गया? जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, कोई जल्दी सक्सेसफुल हुआ, कोई बाद में सक्सेसफुल हुआ, वो सिर्फ मॉनिटरी है, पैसे से। बाकी आनंद कितने बच्चों में है? तो आनंद वही बच्चा ले पाएगा जो नैसर्गिक टैलेंट को ग्रो कराएगा। उसको कॉपी मत करने दो, उसका टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको ग्रो कराओ। बेसिकली हर बच्चा अपने टैलेंट के साथ आया है, और अगर आपको उसका टैलेंट समझ में नहीं आ रहा है तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप आपके बच्चे का टैलेंट नहीं पता कर पा रहे हो। तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए और टैलेंट को आइडेंटिफाई करके बस उसको ग्रूम करते जाओ। क्या पता ये बच्चा वो बच्चा हो जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, ना कि आईआईटी में जाने के लिए स्ट्रगल करे। जय हिंद, जय भारत। Chief guest, principal ma'am, fellow teachers, parents, and my dear students. As we celebrate the glorious 19th Foundation Day of Gurukul, I stand here with a heart full of gratitude to thank everyone who has made the day a grand success. To our chief guest, Mr. Lalit Sir Jadon, thank you so much, sir, for gracing us with your presence. As an eminent psychologist and counselor, you inspiring insight on child development and mental well-being have been incredibly valuable for both teachers and parents alike. To our tiny dots, your adorable and beautiful performance absolutely stole our hearts and filled the auditorium to pride, joy and innocence. To our respected principal ma'am, thank you ma'am for your visionary leadership and unwavering support. You are the pillar of the strength that has successfully guided the Gurukul family through these 19 memorable years. To my fellow teachers and staff, I am incredibly proud of our team. Thank you for your tireless effort, creativity, dedication behind the scenes to make this event flawless and memorable. To our students and parents, thank you dear students for your discipline and enthusiasm. Thank you parents for your continued trust and faith in our Gurukul family. Thank you everyone for making this milestone so memorable. Have a wonderful evening ahead. Thank you. Bye. दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी जोत जगाए, निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी जोत जगाए। और बंदो भक्ति कर लो, और बंदो भक्ति कर लो, साई के दरबार में जगमग जगमग जोत जगे मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग जोत जगे मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंदर जोत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ, ऐसी अंदर जोत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। और बंदो भक्ति कर लो, और बंदो भक्ति कर लो, गुरुवर के दरबार में जगमग जगमग जोत जगे मेरे बापू के दरबार में, जगमग जगमग जोत जगे मेरे साईं के दरबार में।
स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम समाप को है आप सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो, चिरंजीवी हो। हरि हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान